آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ بارش کے بعد درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کم سے کم 28 زیادہ سے زیادہ 30 متوقع ہے۔ 27 جولائی تک لاہور سمیت پنجاب میں وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز فہد امین سے۔ جی فہد۔ جی بالکل، شہر لاہور میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج چھٹے روز مسلسل جو ہے یہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ آج بھی صبح 5 بجے سے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا اور ابھی تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقے جو نشیبی علاقے ہیں وہ اس بارش کے باعث زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ جو اہم شاہراہیں تھیں وہاں پر بھی جو ہے وہ پانی کھڑا تھا۔ تاہم حکومتی اداروں کی جانب سے جو متعلقہ ادارے ہیں، واسا ہے اور دیگر ادارے ہیں، ان کی جانب سے جو مین شاہراہیں ہیں ان سے جو ہے وہ نکاسی آب کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ تاہم جو گلیاں محلے ہیں اور دیگر نشیبی علاقے ہیں وہاں پر گلی محلوں میں ابھی تک جو ہے وہ پانی موجود ہے۔ اگر بارش کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو اس وقت سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ آج فرق آباد میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے، 140.6 ملی میٹر۔ جیل روڈ پر 58.7، ایئرپورٹ پر 25 اور ہیڈ آفس گلبرگ 84، لکشمی چوک 91.6، اپر مال 96.4 اور مغل پورہ میں 46 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب بارش کے باعث جہاں موسم خوشگوار ہوا اور گرمی کا زور ٹوٹا ہے، شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں، مگر اس بارش میں جو ہے وہ بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا ہے، جس نے اس خوشگوار موسم کا مزہ جو ہے وہ کرکرا کر دیا ہے۔ شہر کے جو ہے وہ 50 سے زائد فیڈر جو ہے وہ ٹرپ کر گئے ہیں۔ فیڈر سٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی بندش کا شہریوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو مسائل پیش آ رہے ہیں وہ نشیبی علاقے جو ہیں، ان گلی محلوں میں پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ فہد آپ کا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین چودھری شہباز احمد کا واسا مونسون کنٹرول روم کا دورہ۔ کنٹرول روم سے نکاسی آب آپریشن کی لائیو مانیٹرنگ کی گئی۔ واسا کے 200 سے زائد لائیو کیمروں کے ذریعے شہر بھر میں جاری نکاسی آب آپریشن کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے کہا کہ شہریوں کو فوری ریلیف کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ نشیبی علاقوں سے بارش کے پانی کی بروقت نکاسی کے لیے تمام تر وسائل برائے کار لائے جائیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد اور ایم ڈی واسا لاہور غفران احمد نے واسا مونسون کنٹرول روم کا دورہ کیا، جہاں صوبائی وزیر ہاؤسنگ نے مونسون کنٹرول روم سے نکاسی آب آپریشن کی لائیو مانیٹرنگ کی۔ واسا لاہور کے 200 سے زائد لائیو کیمروں کے ذریعے شہر بھر میں جاری نکاسی آب آپریشن کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر انہیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ بارش کے دوران لاہور کے تمام انڈر پاسز کو لائیو کیمروں کے ذریعے مسلسل مانیٹر کیا گیا تاکہ بارشی پانی کے نکاس کو بروقت یقینی بنایا جا سکے۔ 21 سے زائد مونسون ایمرجنسی ریلیف کیمپس مکمل طور پر فعال ہیں اور فیلڈ آپریشن بلا تعطل جاری ہے۔ اس کے علاوہ تمام ہاٹ اسپاٹ پر واسا کی مشینری اور عملہ نکاسی آب کے لیے متحرک ہے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ نے اس موقع پر کہا کہ شہریوں کو پوری ریلیف کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے اور خاص طور پر نشیبی علاقوں سے بارشی پانی کے بروقت نکاس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وائس چیئرمین واسا کا کہنا تھا کہ تمام فیلڈ آفیسرز اور عملہ اپنے متعلقہ فیلڈ میں موجود رہیں تاکہ بارش کے دوران اور بارش کے بعد لاہور کے واسیوں کو بہترین جو نکاسی آب کی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ بہت شکریہ زین۔ مونسون بارشوں کے دوران ٹریفک روانی برقرار رکھنے کے اقدامات۔ سی ٹی او لاہور عبدالرحیم شہرازی کا کہنا ہے کہ لاہور کے 130 نشیبی مقامات کی خصوصی مانیٹرنگ جاری ہے۔ سیف سٹی کیمروں سے ٹریفک صورتحال پر نظر ہے۔ 80 اضافی ٹریفک وارڈنز مختلف مقامات پر تعینات کیے گئے ہیں۔ تمام ادارے باہمی تعاون سے کام کر رہے ہیں۔ سی ٹی او کا مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے مدثر حسین سے جو اس وقت سی ٹی او لاہور کے ساتھ موجود ہیں۔ جی مدثر۔ جی بالکل، مونسون کا دوسرا سپیل جاری ہے اور شدید بارشیں جو ہیں وہ شہر میں ہو رہی ہیں۔ ٹریفک کے کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں مونسون پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے؟ سی ٹی او لاہور عبدالرحیم شہرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، بڑا شہریوں کا اہم مسئلہ ہوتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں، نشیبی جگہوں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس حوالے سے کیا آپ نے کوئی اضافی وارڈن تعینات کیے ہیں اور کیا کس طرح کے انتظامات؟ جی بہت شکریہ۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مانسون کا سپیل ہے، آج بھی 3 اس میں
स्पेल्स में बारिश हुई है, उसके बाद अभी भी शायद बाहर बारिश हो रही है। 2 दिन पहले जो है वो 260 mm बारिश जो है वो वुड एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई, उससे 2 दिन पहले 150 mm की गई। तो इसमें जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं लाहौर के तकरीबन 130 के करीबन, उनकी हमने बिल्कुल एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ जो कि उनकी मॉनिटरिंग करता है। वासा और उसके अलावा दूसरा सेफ सिटी से वहाँ पर हमारी एग्जैक्टली नजर आता है कितना पानी खड़ा हुआ है, और इस पे हमने इसको कैटर टू करने के लिए हम अपनी इजाफी डिप्लॉयमेंट करते हैं। तकरीबन 80 करीब हमारे एक्स्ट्रा वार्डन्स हैं जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी सेक्टर इंचार्जेस हैं वहाँ पर उनकी गाड़ियों में टो चेन और जो है वो जंप लीड्स हमने रखवाई हुई, किसी गाड़ी खराब हो जाए तो वहाँ पर उनको वक्ती तौर पर उनको रिलीफ दे के गाड़ियों को वहाँ से जो अगर फर्स्ट टाइम स्टैंड हो जाए तो वहाँ पर उनको निकाल दिया जाता है। उसके अलावा हमारे जो लिफ्टर्स हैं और हमारे जो ब्रेक डाउन ट्रक्स हैं, 36 लिफ्टर्स हैं और 12 ब्रेक डाउन ट्रक्स हैं, वो कहीं पर भी अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है वो आपको पता है कि जो पिछली बारिशें हुई हैं उसमें एक सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा हमने फ़ौरन अपनी गाड़ियाँ वहाँ भिजवा दी ताकि जो भी हमारे शहरी हैं उनकी गाड़ियों का नुकसान जो है वो होने से बच जाए। इससे पहले हम इसकी प्रेपरेशन में हम जो हमारे झेली इदारे हैं उनको हम लिख चुके हैं कि जी जो बहुत सारी तेज़ बारिशें होती हैं, हवाएं चलती हैं, दरख्त गिर जाते हैं, बिल बोर्ड्स गिर जाते हैं, तो उनकी महफूज बनाने के लिए एज पर उन देयर रूल्स एंड देयर रेलेवेंट लॉज कि जो डेड ट्रीज हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाए, जो बिल बोर्ड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को देख लिया जाए कि अगर कोई अनस्टेबल है। उसके साथ साथ हम अपनी हमारी जो वेबसाइट है और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम तमाम लोगों से वो कन्वे करते रहते हैं कि जी अपना अननेसेसरी जो ट्रैवल है उसको अवॉइड करें। सर, डिफेंस पे बड़ा मसला आया पानी के हवाले से, वहाँ पे पानी खड़ा रहा, और आपने क्या वासा से इस हवाले से कोई लेटर लिखा है जिन जहाँ जहाँ पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो रहा है नशीबी जगहों पर, उस हवाले से आइंदा के इंतजाम? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। जिस तरह ये बारिशें हुई तो आपने देखा कि आपके लालक जान चौक में तकरीबन 5 फुट पानी खड़ा रहा। उसके बाद जो मस्जिद चौक है एच ब्लॉक की, वहाँ पर तकरीबन 12 फुट पानी था। वो अंडरपास जो उसका है वो कंप्लीटली सबमर्ज था, और उससे पीछे जो गाजी जो पहले चौक आपका मेन आता है वहाँ पर जो था वो तकरीबन 1.5 दिन उसमें पानी रहा। तो डीएचई की अथॉरिटीज से हम मुकम्मल राब्ते में थे, उनमें उनकी कोई सीवरेज लाइन में कोई इशू था, 30 क्यूसिक्स उनकी प्रॉपर उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो कि उससे ज़्यादा पानी आ गया था। तो हमने उससे ये किया कि चूंकि वहाँ पर कंटोनमेंट्स हैं 2, वाटर कंटोनमेंट, दूसरा कैंट कंटोनमेंट, तो लेकिन इस दफ़ा चूंकि आपको पता है कि ये एक कलेक्टिव अप्रोच ही होती है किसी चीज़ को हेल्प करने के लिए, तो मैंने जो एमडी वासा हैं उनकी कोऑर्डिनेशन करा दी है, उनके साथ खुद बात भी की थी और उनके नंबर्स एक्सचेंज करा के, ताकि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जहाँ पर उनको लग रहा है कि उनकी मशीनरी या उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो वासा चूंकि उनके पास बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं तो वो अपनी वहाँ पर करते, तो शायद जो पानी 1 दिन में या 1.5 दिन में वहाँ से उन्होंने उसको ड्रेन आउट किया है तो वो शायद कुछ घंटों में हो जाता। तो ये हमने कोऑर्डिनेशन करा दी। जी बिल्कुल, सिटी लाहौर अब्दुर्रहीम शराजी की अपनी बात सुनी, उनका ये कहना था कि मानसून के हवाले से इजाफी वार्डन भी तैनात कर दिए गए। इसके अलावा जो वासा इंतजामिया है उनसे भी जो है वो रब्ता किया गया है, जहाँ पर नशीबी जगह है वहाँ पर जहाँ पर पानी खड़ा है उस हवाले से वहाँ पर जी इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिरा। मानसून की बारिशों से कमजोर छतें मुतासिर होने लगी हैं। रेलवे कॉलोनी गड़ी शाहू में छत गिरने से मियाँ बीवी समेत एक बेटी जांबाग, दूसरी जख्मी हो गई। इसी तरह बेदिया रोड पर घर की छत गिरने से मलबे तले दबने वाले 3 अफराद जख्मी। काहना मेन बुलेवर्ड फिरोजपुर रोड पर भी दुकान की छत गिर गई। मानसून की बारिशों ने कमजोर छतों को मुतासिर कर दिया। रेलवे कॉलोनी गड़ीशाव में टीआर गार्डर्स की कमजोर छत बारिश का बोझ बर्दाश्त न कर सकी और छत गिरने से 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। जहाँ बहक होने वालों में मुबीन अलवी, उनकी अहलिया और 12 साल बेटी फातिमा शामिल हैं, जबकि 14 साल बेटी आइमा शदीद जख्मी हो गई। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाकर लाशों और जख्मी को निकाला। अहले इलाका ने बताया कि सुबह 5 बजे छत गिरने की आवाज आई। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाया। तीनों लाशें और जख्मी बच्ची की चीखों पुकार सुनकर उसे बाहर निकाला। जहाँ बहक फातिमा कराटे की खिलाड़ी थी। कोलीग और इंस्ट्रक्टर ने बताया कि बहुत होनहार बच्ची थी। जी, सूरत हाल तो यही थी कि सुबह 5 बजे का वक्त था और 5 बजे यहाँ पे आवाज़ सुनाई दी गई और यहाँ पे एक बच्चा है, उसने शोर किया कि यहाँ पे एक छत गिर गई है। तो 2-4 लोग जो हम मोहल्ले के हैं वो इकट्ठे हुए हैं और इस वाक़े पर पहुँचे हैं और अपनी मदद खुद जो है वो हमने मलबे से जो है वो बॉडियों को निकाला है
तो ये मामला सुबह 5 बजे आया। सिस्टर थी मेरी बनवाई थे और उनकी छोटी बेटी फातिमा मुबीन, और जो उनसे बड़ी है वो हॉस्पिटल में है। अल्लाह ताला ने उसे यानी कि ज़िंदगी अता फरमा दी है। तो क्या वाक़या पेश आया? ये वाक़या का नाम है बारिश की वजह से छत गिरने थे। मेरा नाम माहीन है फातिमा, मेरी कराटे फ़ेलो थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। वो कल रात को भी हमारे साथ आई थी, लेकिन यूनिफॉर्म में नहीं थी, मिलने के लिए आई थी अपने कज़न्स के साथ। पहले भी उसके ताया अबू का इंतकाल हुआ था और उनकी ताई की इद्दत पूरी हुई थी, तो वो आई थी अपने कज़न्स के साथ। तकरीबन सुबह मुझे कॉल आई है कोई 8 बजे मेरे सर की। उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये छत गिर गई है, तो फातिमा और उसकी मामा और उसके पापा फोत हो गए हैं। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप जाके इधर देखें। जैसे मैंने आगे सर इधर चेक किया, मैंने ये सारा कुछ देखा है निज़ाम। तो इसी तरह बेदियां रोड पर घर की छत गिरने से मलबे तले दबने वाले 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। घर की छत टीआर गार्डर्स की बनी थी। जख्मियों में 65 साल असलम मीर आलम, 19 साल एहसान, 50 साल मुमताज बीबी शामिल हैं। कहना में मेन फिरोजपुर रोड पर दुकान की छत गिर गई। रेस्क्यू टीम ने मोहम्मद अरशद नामी शख्स को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत खस्ता हाल होने की वजह से गिरी, जहां खड़ी गाड़ी को भी नुकसान हुआ। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं, शदीद बारिश के बायस शहर में हादसात का सिलसिला जारी है। फिरोजपुर रोड के करीब शादाब कॉलोनी में घर की छत मुनहदम। रेस्क्यू टीमों ने 4 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया और अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शादाब कॉलोनी में मेलाद चौक पर शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई। छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर की छत मट्टी और टीआर गार्डर से बनी हुई थी। छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने बाहर निकाला। जख्मियों में 40 साल इमरान, 36 साल अदनान, 40 साल एजाज, 40 और 12 साल हसन शामिल हैं। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, डायरेक्टर जनरल पीडीएम में उमर अब्बास मेला का कहना है कि बारिश का अगला स्पेल वस्ती पंजाब और जनूबी इलाकों पर असरअंदाज हो सकता है। बास मकामात पर क्लाउड ब्रस्ट का भी खदशा है। तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट और कंट्रोल रूम्स 24 घंटे फाल रहें। डीजी पीडीएम में उमर अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अब तक लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी डिवीजन्स में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। नारोवाल, जेहलम और गुजरात में भी अच्छी बारिश हुई है। दरिया रावी, सतलुज, जेहलम और मंगला में पानी की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। मरारा के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ था, ताहम अब सूरत हाल नॉर्मल है। नाला डेक और दीगर नदी नालों की सूरत हाल भी काबू में है। जो हमारे रावी और सतलुज है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई ऐसी नथिंग टू वरी अबाउट। रावी में शादरा के मकाम पे 40,000 तक सिर्फ गया था, वापस 20,000 से नीचे आ गया। हमारे नालाज जो ख़ास तौर पे रेन एरिया में होते हैं, कैचमेंट एरिया क्रॉस द बॉर्डर होता है, वो थोड़ी सी हमें नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि उसकी एकदम रिएक्शन टाइम थोड़ा कम होता है, जल्दी पानी आ जाता है। लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह लो फ्लड है या नॉर्मल है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। उन्होंने बताया, मानसून से कम बड़े नालों की सफाई, वासा की तकरीबन 1000 नई मशीनरी की फ्राहमी और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी के बायस गुज़श्ता साल के मुकाबले में 3 गुना कम पानी जमा हुआ। ओवर द लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू हुआ है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से। उसका इनिशियल कॉम्पोनेंट था स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एंड अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स। उसमें ऑलमोस्ट सब शहरों में रोड साइड अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स भी और मेन भी बन चुके हैं। उसकी वजह से बहुत सारी पॉन्डिंग कम हुई है। इसके अलावा उसके अंडर बहुत सारी मशीनरी ली गई है। सिर्फ वासा की तकरीबन 1000 मशीनरी एडिशनल डिप्लॉय हुई है 41 शहरों में। तो इसलिए आपने देखा होगा जो बड़े शहरों में बहुत कम जगहों पे पॉन्डिंग हुई है, जहाँ भी हुई है फ़ौरन क्लियर हो गई है। उन्होंने अपील की कि शहरी मौजूदा इमारतों में रहने, बिजली के तारों के करीब जाने और नदी नालों में नहाने से गुरेज करें। किसी हंगामी सूरत हाल में पीडीएम की हेल्पलाइन पर कॉल करके राब्ता कर सकते हैं। ज़्यादा बारिश और ज़्यादा पानी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, वज़ीर आला मरियम नवाज़ के पेशगी इक़दामात की बदौलत चंद घंटों में इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। अपने बयान में अज़मा बुखारी ने कहा, मुख्तलिफ शहरों की बारिश के बाद निकासियाब की सूरत हाल नज़र आ रही है। अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर निकासियाब की वीडियोज़ भी शेयर की हैं। एलडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उकाब दरख्त पर उलझी डोर में फंस गया। उकाब को दरख्त में फंसी डोर से बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। उकाब तकरीबन 3 घंटे तक 30 फीट बुलंद दरख्त पर बेबस लटका रहा।
रेस्क्यू के बाद उकाब को पानी पिलाया गया और इब्तदाई निगहदाश्त फराहम की गई। सेहत बहाल होने पर उकाब को दोबारा खुली फिजा में आज़ाद कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उकाब दरख्त पर लटकती डोर में फंस गया था और उकाब को दरख्त में फंसी डोर से बाहिफाजत रेस्क्यू भी कर लिया गया। उकाब तकरीबन 3 घंटे 30 फीट बुलंद दरख्त पर बेबस लटका रहा। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए असलाहात पर अमल पैरा है। मुल्क की तरक्की का इन्हिसार पायदार तवानाई जिद्दत और सनती तोसी पर है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल के एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, नौजवानों को मईशत के तकाज़ों के मुताबिक जदीद महारतों से आरास्ता किया जा रहा है। निजी शोबा पाकिस्तान की मईशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। दरामदात के ज़रिए ही पाकिस्तान पर एक बोझ डालना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने जो आज सलाहियत देखी है अपनी इंडस्ट्री में, मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान EV सेक्टर के अंदर भी दुनिया में एक बड़ा मुकाम पैदा ना कर सके और हमारे बिजनेसमैन लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट के ज़रिए पाकिस्तान के लिए ख़तीर ज़र मुबादला ना कमा सकें। आज मुख्तलिफ जो एग्ज़िबिटर्स हैं उन्होंने बताया कि वो पहले ही अमेरिका जैसी मार्केट में, यूरोप, मशरक़ वस्ता और मुख्तलिफ मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत ने FBR में बहुत इस्लाहात किए हैं और हमने उसके निज़ाम को डिजिटाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए ख़तीर सरमायाकारी की है ताकि जो इंसानी जजमेंट है वो ख़त्म हो जाए और तमाम डिजिटल तरीके से टैक्स की असेसमेंट की जाए और अब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लेकर आया जा रहा है जिससे कि बड़ी हद तक इन शिकायत को दूर करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ ये चीज़ भी एक पेश नज़र है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया में कम तरीन टैक्स इकट्ठा करने वाले मुल्कों में होता है। हमारी टैक्स टू GDP की शरह तकरीबन 10.5% है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने का मुतालिबा। हाफिज़ नईम रहमान का समाजी वेबसाइट X पर पैगाम, कहा पेट्रोल की कीमत कम की जाए, पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स है। 7 अगस्त का एहतजाज पाकिस्तान में मज़ामत की नई तारीख रकम करेगा। तुलबा, नौजवान बाइक राइडर्स, मजदूर और किसान इत्तेहाद में शरीक हो। पुरअमन सियासी मज़ामत के ज़रिए अवाम अपने हकूक़ हासिल करेंगे। आपको बता रहे हैं, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने का मुतालिबा। हाफिज़ नईम रहमान का समाजी वेबसाइट X पर पैगाम, उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए, पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स है। 7 अगस्त का एहतजाज पाकिस्तान में मज़ामत की नई तारीख रकम करेगा। तुलबा, नौजवान बाइक राइडर्स, मजदूर और किसान इत्तेहाद में शरीक हों। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रोज़ाना रद्दोबदल आवाम के लिए वबाल जान बन गया है। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे जबकि डीजल 4 रुपये 80 पैसे महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे और डीजल की नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने का सिलसिला जारी है। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे जबकि डीजल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर तक महंगा कर दिया गया। पेट्रोल के निर्खों में सिर्फ पहले रोज 35 पैसे की कमी की गई थी, उसके बाद मुसलसल तेजी का सिलसिला जारी है। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पेट्रोल मजमूई तौर पर 19 रुपए से जायद जबकि डीजल 29 रुपए से जायद महंगा हो चुका है।